Hello students, welcome Mathematics of Class 4, Chapter 14, Smart Chart. This is the part 5 of this chapter. This is the last part of this chapter. Students, in the previous video you have learned about the pictograph, right students? So, you have learned it how to solve the question answer from the pictograph. ओके आपने देखा था कि पिक्टोग्राफ में कैसे आंसर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं पिक्टोग्राफ पर से. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ पिक्टोग्राफ? पिक्टोग्राफ मीन्स a graph which is represented through the pictures. Okay, now see here, draw a pictograph showing different animals and the number in a zoo. This is our questions. Here the key is provided. One smiley is equal to two animals and this is the half smiley is equal to one animal, right students? See, this is our question. It's given in the table. Animals. Here showing the name of animals: zebra, tiger, deer, elephant and giraffe. Numbers. That means 14 zebra in the zoo, 7 tiger, 13 deer, 9 elephant and 5 giraffe. These are the animals in the zoo that has been represented through the pictograph. हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? पिक्टोग्राफ. और पिक्टोग्राफ किस पे होता है? पिक्चर्स पे. तो पिक्चर्स के लिए हमें कौन सा की प्रोवाइड किया गया है? स्माइली. ओके, तो हमें स्माइली ड्रॉ करके ये जो नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट वी ड्रॉ द टेबल. See students, you have to draw the table like this whenever you have to draw the pictograph. Okay, pictograph draw करना हो तो आपको एक ऐसा टेबल बनाना है. So what has to write here? Here first we write the animals. That means here we will write the name of animals. Which are the name? Zebra. So हम यहाँ पे लिखेंगे zebra. Then which is the another one? Tiger. Then next one is deer. Then what is next? Elephant. And the last one is the giraffe. Okay, so here you can write the name of animal also, give the heading like that also. Now next one is numbers. That means what is represented? Number of animals. तो हम यहाँ पे लिखेंगे heading में number of animals. Okay, now students, here the number is given, but when we make the pictograph that we represented through the picture. ओके, यहाँ पे हमें 14 नहीं लिखना है पर उसके फॉर्म में हमें पिक्चर रिप्रेजेंट करने हैं. तो विच पिक्चर वी विल टेक इट? यहाँ पे जो की दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे. सो व्हाट इज़ अवर की? स्माइली. दैट मीन्स हियर वी ड्रॉ द स्माइली एज पर 14 नंबर, राइट. पर स्माइली यानी वन स्माइली ड्रॉ करेंगे तो कितना होगा? 2 एनिमल्स. ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट. सो जेब्रा कितने हैं? जू में 14. सो लेट्स ड्रॉ इट हियर. So students, this has to draw with the pencil. So students, when you draw the graph, you use a pencil. तो zebra 14 है. So here I will draw one smiley first. One smiley means 2 zebra, right? Now one more smiley, that means 4 zebra. 2 plus 2 4 होता है ना. Then one more smiley, that means 6, 8, 10, 12 and 14. Okay, so how many smileys we have drawn? 1 2 3 4 5 6 7. 7 twos are 14. That means this 7 smiley represents zebra. That means 14 zebras in the zoo. Clear? Why I am counting 2? Because key is provided. One smiley is equal to 2 animals. अंडरस्टूड. सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स एज पर द गिवन कीज. आपको ये जो भी पिक्चर है यहाँ पे जैसे की में बताया गया है वो पिक्चर्स के साथ वो नंबर को लेके आपको करना है. ठीक है, यहाँ पे वन स्माइली मीन्स 2 एनिमल्स लिखा है तो 2. अगर अब सपोज लिखा हो वन स्माइली मीन्स 3 एनिमल, सो उसको अकॉर्डिंग आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करने होंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन टाइगर. हाउ मेनी टाइगर्स इन द जू? 7. सो लेट्स ड्रॉ इट. 2, 4, 6. Okay, 2, 4, 6. Now 7. We are having 7 tigers in the zoo. So 7 के लिए क्या करेंगे? अगर एक और ड्रॉ करोगे तो 8 हो जाएगा. तो 7 के लिए हमारे पास हाफ स्माइली है. हाफ स्माइली मीन्स 1 एनिमल. तो हम 7 के लिए हाफ स्माइली ड्रॉ करेंगे.
1 eyes and half mouth. Okay, so 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 1 7 हो गया 7. क्लियर. तो आपको की का अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होगा पिक्टोग्राफ. ठीक है. नाउ डियर, हाउ मेनी डियर? 13. So let's draw it. 2, count and draw. 4, 6, 8, 10, 12 हो गया. अब और एक ड्रॉ करोगे तो 14 हो जाएगा. बट वी नीड अ 13 डियर. सो व्हाट टू डू स्टूडेंट्स? वी ड्रॉ द हाफ स्माइली. हाफ मीन्स 1 एनिमल. सो वो 13 बन जाएगा. हो गया. 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 2 12 plus 1 13. Okay, now elephant 9. So let's draw it. 9, 2, 4, 6, 8 और 9 के लिए हाफ ड्रॉ कर देंगे. 1 बाकी है तो हो गया 9. ओके, सो आफ्टर ड्राइंग यू मस्ट काउंट इट ऑल्सो. 1 मोर और 1 लेस इट विल बी रॉन्ग. एक ज़्यादा या एक कम वो ड्रॉ करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. नाउ लास्ट वन इज जिराफ. जिराफ कितने हैं? 5. सो 2, 4 एंड हाफ ड्रॉ कर लेंगे तो 5 हो जाएगा. क्लियर. 2 plus 2 4 plus 1 5. क्लियर. योर पिक्टोग्राफ इज रेडी. बट वन थिंग हैज़ टू राइट हियर. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. यू कैन ड्रॉ द बिग बॉक्स एंड दैट ऑल्सो यू कैन राइट. सो आपको यहाँ पे लिखना है 1 स्माइली इज इक्वल टू 2 एनिमल्स. ठीक है. और यू कैन राइट हियर ऑल्सो हाफ स्माइली मीन्स 1 एनिमल. सो आप चाहो तो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लो एंड देन यू कैन राइट इट हियर. एंड दिस की यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो. आप चाहो तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हो ऐसे. 1 स्माइली इज इक्वल टू 2 एनिमल्स एंड दिस हाफ स्माइली मीन्स 1 एनिमल. क्लियर स्टूडेंट्स. सो योर पिक्टोग्राफ इज रेडी. अंडरस्टूड व्हाट टू डू व्हेन यू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ. कैसे करना है तो आपको की को ध्यान में रख के यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर. सो यू हैव टू जस्ट मेक द 2 कॉलम एंड ड्रॉ द पिक्चर एज पर द गिवन नंबर. ओके. एंड की के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पिक्चर्स के साथ उसको काउंट करके ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड. लेट्स सी द नेक्स्ट चार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन? ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this question you have to draw the bar graph. Okay, bar graph means what? The data represented through the bars. Okay, जो डेटा होता है वो बार से रिप्रेजेंट होता है. वो मैंने आपको सिखाया है ना बार ग्राफ कैसे रीड करना है एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बार ग्राफ. सो द सेम वे हियर यू हैव टू जस्ट डेटा इज गिवन. यानी डेटा आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ करोगे. ठीक है. दिस इज योर डेटा. व्हाट इंफॉर्मेशन डेटा इज गिवन? द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास 4 स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम्स. यानी क्लास 4 के स्टूडेंट्स की फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम क्या है उसके रिलेटेड ये डेटा कलेक्ट करे गए. ठीक है. सो यानी डेटा आपके पास है. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ. बार ग्राफ. कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? बार ग्राफ. दैट मीन्स व्हाट इज गिवन? ब्रेकफास्ट आइटम, boiled egg, cornflakes, sandwich and fruits. These are the breakfast item. And number of students, that means 12 students like the boiled egg, 9 students like the cornflakes, 15 like the sandwich and 21 students like the fruits. Understood students? So now you have to draw the bar graph. Let's see how to draw first. So students, first you have to draw this line. This is called the y-axis and this is called the x-axis, right? यानी जो horizontal line है पहले हम यहाँ पे arrow लगा देंगे. ठीक है. सो ये वाली जो एक्सिस है वो y है. वर्टिकल एक्सिस y एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहेंगे? x. ठीक है. एंड यू हैव टू राइट द 0 हियर फर्स्ट. जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट होती है वहाँ पे आपको 0 लगाना है. ठीक है. सो पहले आप ये 2 लाइन ड्रॉ कर लोगे, दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लोगे. देन यू हैव टू राइट द स्केल. स्केल मीन्स व्हाट? ये जो नंबर है आपको उसके अकॉर्डिंग स्केल डिसाइड करना होगा. ओके. तो स्केल कैसे डिसाइड करेंगे आप देख लो. 12, 9, 15 एंड 21. ओके. तो यहाँ पे आपको नंबर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्केल डिसाइड करोगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी नंबर है वो 3 के टेबल्स में आते हैं. 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 7s are 21. तो हम यहाँ पे स्केल क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पे हमें लिखना है स्केल इज इक्वल टू, वो लिखोगे अलॉन्ग y
एक्सिस, यानी जो स्केल है हम वो वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस सब 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, यानी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, 12 स्टूडेंट्स है जिसको बॉइल्ड एग पसंद है, 9 स्टूडेंट्स हु लाइक द कॉर्नफ्लेक्स, 15 स्टूडेंट्स हु लाइक द सैंडविच एंड 21 स्टूडेंट हु लाइक द फ्रूट्स। ओके, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्केल आप अपने अकॉर्डिंग जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1 यूनिट मीन्स वी कैन से 1 सेंटीमीटर ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया है, हमने सिंगल लाइन वाली बुक में ले रहे हैं, इसलिए हम 1 यूनिट लिखेंगे, ठीक है। 1 यूनिट मीन्स यानी ये आपके बुक का जो एक लाइन होता है, 0 के बाद जो एक लाइन आएगा वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3, ठीक है। समझ में आया। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप एक एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो अब यूनिट की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। सो हमने यहाँ लिखा 3, देन 3 में 3 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6, यानी आपका जो सेकेंड लाइन आएगा सिंगल लाइन में वहाँ पे 6 लिखना है ना। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला लाइन है वहाँ पे ऐसे लाइन बना के क्या लिखना है, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 12, देन 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 15 प्लस 3 18। देखो मैं हर एक लाइन में एरो बना के लिख रही हूँ। 21, देन 21 प्लस 3 करेंगे 24, देन 24 प्लस 3 करेंगे 27। ये कहाँ तक लिखना है, जहाँ पे आपका सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है 21, यानी आप 21 भी लिख सकते हो और आप 24 भी लिख सकते हो लास्ट, या 27 लिख सकते हो। बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये हमने क्या डिसाइड कर लिया, स्केल। दिस लाइन इज कॉल्ड द स्केल। ओके, यहाँ पे हम स्केल रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और यहाँ पे हम जो डेटा होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बॉइल्ड एग, सारी जो ब्रेकफास्ट आइटम है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सी हाउ टू राइट इट। मैंने पेपर को टर्न कर लिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी हियर। ओके, सो लेट्स मेक द फर्स्ट ग्राफ। सो बॉयल्ड एग के कितने स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, बॉयल्ड एग के 12। ओके, so students, before making the graph I want to tell you one thing here, 0 थी 3, okay, 0 से जो 3 का डिस्टेंस है उसमें 1 and 2 both numbers are included, 1 and 2, यानी 0 के बाद 1 आएगा, then 2 and then 3 will come, राइट। बट हमने यहाँ पे हर एक नंबर को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए हमने इक्वल फ्रिक्वेंसी में नंबर को लिया है, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 6 आता है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 है एंड 5 है, देन 6 विल कम। क्लियर। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारे नंबर हो वही नंबर यहाँ पे हो सकता है सपोज़ आपको 4 नंबर पूछा हो जो यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके ग्राफ बनाना रहता है, ठीक है। अब 6 के बाद 9 है तो यहाँ पे क्या होगा 7 and 8। दिस आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ओके, ज़रूरी नहीं कि 3 6 ही आएगा, यानी इन जो दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर आता है दैट शुड बी कंसिडर इन द मिडल नंबर। क्लियर। तो हम फर्स्ट लेट्स मेक द फर्स्ट ग्राफ। बॉयल्ड एग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 12। तो स्टूडेंट्स ग्राफ कैसे बनाएंगे, सो फर्स्ट यू हैव टू पुट द स्केल वेट नियर द 0, 0 के पास रखना है। और आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी स्केल में 0 है, तो ये 0 से आपको 1 तक का डिस्टेंस लेना है, यानी 1 है वहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स क्लियर दिखाई दे रहा है। 0 से आपके पास 0 जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पे स्केल रखनी है, वहाँ पे 0 रखना है, और यहाँ पे 1 के पास आपको मार्किंग करनी है। और आपको ग्राफ 1 यानी 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वो लीव कर देना है, और 1 के बाद 2 के पास मार्किंग करनी है। समझ में आया आपको कैसे करना है, पहले 0 के पास स्केल रखनी है, 1 के पास मार्किंग कर ली, देन 2 के पास मार्किंग कर ली, हो गई। दैट मीन्स स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस को लीव कर लेना है, और अब हम यहाँ से ये जो है ग्राफ बनाएंगे, यानी यहाँ से कहाँ तक का बनाना है 12 तक का, बिकॉज बॉयल्ड एग वाले स्टूडेंट्स 12 है, यानी 0 से 12 तक का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो मैंने ग्राफ बना लिया, यहाँ पे मैंने मार्किंग करी थी, ये डिस्टेंस को लीव करा 0 से 1 का, और 1 और 2 को मार्किंग करी और ग्राफ बना लिया। वाई आई मेक द 12, बिकॉज 12 स्टूडेंट्स है इसलिए। ओके, तो हम यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे स्टूडेंट्स।
सो व्हाट इज़ द नेम हियर? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बॉइल्ड एग। दैट मीन्स दिस बार रिप्रेजेंटेड द बॉइल्ड एग्स, यानी ये जो बार है वो बॉइल्ड एग्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स 12 यहाँ पे स्टूडेंट्स है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट आइटम है, यानी बॉइल्ड एग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 12। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको क्योंकि हमें क्यों यहाँ पे मेजरमेंट लेना है? बिकॉज बार की जो विड्थ होती है यानी थिकनेस वो इक्वल होती है। इवन बार के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, इसलिए हमें मार्किंग करके ग्राफ बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? लेट्स मेक द अनदर वन। तो स्टूडेंट उसके लिए भी पहले आपको स्केल रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने जहाँ फिनिश किया है ना वहीं 0 के पास रख दो, वापस 1 के पास मार्किंग कर लो। ओके, यानी स्केल कहाँ से रखनी है? आपका बार जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे 0 रखो, देन 1 के पास मार्किंग करो और दूसरा मार्किंग 2 के पास करो। ठीक है, देखो ऐसा बन गया, यानी ये जो स्पेस लीव किया वो भी 1 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे जो लीव किया था वो भी 1 सेंटीमीटर है, और जो बार की जो विड्थ है वो भी 1 सेंटीमीटर है, यानी इक्वल डिस्टेंस भी मिल रहा है प्लस बार की विड्थ भी इक्वल मिल रही है। राइट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है कैसे मैं बार बना रही हूँ? अब क्या है, कॉर्नफ्लेक्स वाले बच्चे कितने हैं? 9, यानी हम जो बार की हाइट बनाएंगे वो वहाँ तक, देखो 9 है तो आपको यहाँ देखना है, यस, यानी आपका जो बार की विड्थ बनेगी वो 9 बार की जो हाइट बनेगी वो 9 स्टूडेंट्स तक बनानी है। देखो हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 आ गए यहाँ पे। तो ये कौन से स्टूडेंट्स है? कॉर्नफ्लेक्स वाले, जो बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स पसंद है, दैट स्टूडेंट्स नेम हैज़ टू राइट हियर। ओके, कॉर्नफ्लेक्स लिख दिया हमने, यानी ये जो बार है वो कॉर्नफ्लेक्स वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो यहाँ जो डिस्टेंस है बार के बीच का आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 1 की जगह 2 सेंटीमीटर्स भी ले सकते हो। इट्स डिपेंड नंबर ऑफ द डेटा। ओके, नाउ लेट्स मेक इट द थर्ड वन। थर्ड वन के लिए स्टूडेंट्स हम कहाँ रखेंगे? अगेन वी हैव टू पुट द स्केल नियर, जहाँ पे आपका बार कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे रखना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ अगेन मार्किंग कर लो 1 के पास एंड 2 के पास। देखो हो गया मार्किंग। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट डेटा? क्या है? सैंडविच वाले बच्चे कितने हैं? 15, तो हमें 15 तक जाना है। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 15। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 15, ठीक है, तो हम यहाँ तक की उसकी हाइट बनाएंगे स्टूडेंट्स। समझ में आया? ये यहाँ पे 15 है तो यहाँ तक उसकी हाइट बनेगी। लेट्स मेक इट आउट। देखो 15 स्टूडेंट्स लाइक सैंडविचेस, 15 स्टूडेंट्स को सैंडविचेस पसंद है ना। देखो आप देख सकते हो, तो देखो मैंने हाइट कितनी बनाई है यहाँ पे? 15 तक। ठीक है, सैंडविचेस वाले बच्चे मिल गए। द सेम वे यू हैव टू मेक फॉर द फ्रूट्स। कितने बच्चे को फ्रूट्स पसंद है? 21। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैसे वापस स्केल लेना है, 0 के पास रखना है। ठीक है, जहाँ पे आपका बार कंप्लीट होता है वही रखना है। ओके, देन यू हैव टू मेक द मार्किंग नियर टू 1 एंड नियर टू 2। ठीक है, उससे क्या होगा, स्पेसिंग जो बार के बीच में वो भी इक्वल रहेगी और बार की विड्थ भी इक्वल रहेगी, यानी बार की विड्थ सबकी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब 21 तक जाना है उसको, तो 21 कहाँ पे है? हियर। तो आपको यहाँ तक की हाइट का बार बनाना है। ओके, देखो बन गया आपका फ्रूट्स वाले बच्चों का बार। डैट मीन्स 21 स्टूडेंट्स लाइक द फ्रूट्स। जैसे दिया है 21 स्टूडेंट्स लाइक द फ्रूट्स। ओके, सो योर बार इज़ कम्प्लीटेड। सो आप चाहो तो बार में ऐसे करके डिज़ाइंस भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर चॉइस। आप कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हो, सेम डिज़ाइंस बनानी है। ठीक है, क्लियर? So your bar is ready. One more thing is left. Here we have to give the name. What is this? These are the breakfast item. तो हमें यहाँ पे हेडिंग देना है ब्रेकफास्ट आइटम्स। ठीक है, ओके, यानी हर एक एक्सिस को लेबल करना है, एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी, और यहाँ पे स्केल लिखना है। ठीक है, और वन मोर थिंग, वी हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ दिस चार्ट। व्हाट इज द चार्ट हेडिंग? क्या हेडिंग है, क्या है ये, किसके ऊपर बनाया गया है? फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम। आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज़ रिटन? फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम, यानी ये जो चार्ट बना रहे हैं वो फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम का है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम। Clear students? How to make the bar graph?
समझ में आ रहा है आपको? सो एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले पाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लो, ओके। उसके बाद स्केल डिसाइड कर लो। स्केल मैंने बोला वैसे आपके पास जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। वो लगने के बाद आप उसका लेबल कर लो उसको, यानी ये जो स्केल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। और ये जो एक्स एक्सिस वाला स्केल है वो ब्रेकफास्ट आइटम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेकफास्ट आइटम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में देखो यहाँ पे ये है ब्रेकफास्ट आइटम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ब्रेकफास्ट आइटम लिखना है। और आपको यहाँ पे ये जो चार्ट का पूरा चार्ट जिसके ऊपर बना रहे हैं उसका हेडिंग डालना है। तो 1 2 3 and 4 things हैज़ टू राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? So I hope you understood both the graph properly. So students, do more practice which is given in the practice book also. Thank you.